السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر پنجال وائس، میں ہوں سرفراز ملک۔ اس وقت ہمارے ساتھ تنویر بھائی جڑ چکے ہیں جو ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ان سے اہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تنویر بھائی، ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تنویر بھائی، دیکھا جائے الیکشن جو ہے آ چکا ہے، زوروں شوروں سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی پی کا کہیں وجود نہیں ہے، یہ منڈی پول سے پیچھے ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے الیکشن کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، یہ 10 سال بعد جو ہے جموں کشمیر کی عوام کو ایک امید کی کرن جو ہے وہ جاگی ہے۔ بھاجپا تو چاہتی تھی کہ 10 سال کے بعد بھی جو ہے یہاں پر الیکشن نہ ہو۔ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کے شکر گزار ہیں، خاص کر کے سپریم کورٹ کے، جنہوں نے یہ سوچا کہ جموں کشمیر کی عوام کو جو ہے وہ الیکشن کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جموں کشمیر کا اپنا نمائندہ جو ہونا چاہیے، یہاں پر جو جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ بلند کریں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال رہا پی ڈی پی کے ریلیٹڈ، آپ نے سوال پوچھا، یہ پی ڈی پی ایک جماعت نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، ایک تحریک ہے۔ تحریک کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ صدیاں بیت جاتی ہیں، یہ تحریکیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ باقی آپ نے حال ہی ایم پی الیکشن میں جو ہے وہ دیکھ لیا ہوگا، کافی لوگ کہتے تھے پی ڈی پی جماعت جو ہے وہ جمعہ کی جماعت ہے، اور جمعہ کی جماعت کے لوگوں نے بتا دیا کہ یہ جمعہ کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ جو صدیوں سے یہاں پر راج کر رہے تھے، اٹانومی کے نام پر لوگوں کو ورگلا رہے تھے، ان کو بتا دیا کہ پی ڈی پی کا وجود جو ہے ابھی بھی جموں کشمیر میں ہے۔ چودھری مسعود صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ تانترے جو ہے بلاک لور میں منڈی میں جو ہے فرسٹ نمبر پہ ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو نام لیا مجھے ایک دفعہ واپس ریپیٹ کریں۔ چودھری مسعود صاحب جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے، جن کا چناؤ نشان پریشر کوکر ہے، انہوں نے کہا کہ لور میں اور منڈی میں جو ہے شاہ محمد تانترے فرسٹ نمبر پہ ہیں، تو اس کو سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں، میں چودھری مقصود صاحب نہیں جانتا ہوں، لیکن ہاں پریشر کوکر کا جب آپ نے نام لیا تو میں نے ایک اعلان کی گاڑی یہاں پر دیکھی تھی۔ دیکھیے، اب اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں منڈی کا رہنے والا ہوں، میں جب چودھری مقصود صاحب کو نہیں جانتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے منڈی کی عوام بھی جو ہے وہ چودھری مقصود صاحب کو نہیں جانتی ہے۔ ہاں، سننے میں آیا ہے کہ ان کے گھر سے جو ہے کوئی ڈی ڈی سی چیئر پرسن بھی ہے۔ دیکھیے، ہم نے ڈی ڈی سی چیئر پرسن بنا کے آپ کو دیا ہے، آپ کا ایک انٹرویو بھی میں نے سنا حال ہی میں جو ایک وائرل ہو رہا تھا، جس کے ریلیٹڈ آپ نے پوچھا۔ دیکھیے، جس علاقے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس علاقے کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے چودھری مسعود صاحب منڈی کے پیچھے ان کو جانتا نہیں ہے؟ حقیقت ہے، اس میں نہیں کہتا ہوں، یہ منڈی کی عوام کہتی ہے۔ جب میں نہیں جانتا ہوں، ظاہر سی بات ہے منڈی کی عوام بھی کہاں سے جانتی ہوگی۔ دیکھیے، لوگ جو ہے بھاجپا کو ووٹ کیوں نہ کریں؟ سب سے پہلے لوگ بھاجپا کو کیوں نہ ووٹ کریں، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس پہ میرا ایک بڑا اچھا جواب رہے گا کہ بھاجپا کو ووٹ کیوں کریں۔ ہمارے ساتھ نوکریوں کا وعدہ کیا، نوکریاں کہیں پر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر کہا کہ نیا جموں کشمیر بنائیں گے، وہ نیا جموں کشمیر نہیں ہے۔ کہا 370 اور 35A کے بعد جو ہے دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں بہیں گی، وہ دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں جو ہے وہ ابھی تک جموں کشمیر میں جو ہے دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں۔ کہا ٹیلی ویژنوں کو پکا کریں گے، وہ ٹیلی ویژن آج بھی جو ہے وہ روڈوں پر ہیں۔ کہا 50,000 روزگار دیں گے، وہ 50,000 سکیم جو ہے ہمارے جموں کشمیر میں ہوئے ہیں۔ تو ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر نیشنل کانفرنس کی ہم بات کریں، نیشنل کانفرنس کے جو یہاں پہ ایکس ایم ایل اے رہے ہیں، جان صاحب رہے ہیں، 18 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی، ان کے والد محترم نے بھی حکومت کی، تو اب جو ہے لوگ جو ہے نیشنل کانفرنس کو ووٹ کیوں کریں؟ دیکھیے، آپ نے جہاں تک نیشنل کانفرنس کا سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں منڈی کا رہنے والا ہوں، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں، عوام کی ہو، چاہے نوجوانوں کی ہو، غریب لوگوں کی ہو، اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنا آپ نے ہی کہا کہ 22 سال جو ہے وہ جان صاحب کے گھر جو ہے این سی کے مینڈیٹ پر جو ہے وہ اقتدار رہا، لیکن اقتدار رہنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے بیچ جو ہے وہ نہیں دکھائی دیا۔ حال ہی میں نے پوسٹر دیکھا تھا، کافی سارے پوسٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، جس پہ جو ہے این سی کے جو مینڈیٹ پہ یہاں سے لڑ رہے ہیں ان کے پوسٹر نکلے ہوئے ہیں کہ وہ مسنگ ہے، اگر کسی کو مل جائے تو ان کو منڈی کا راستہ جو ہے وہ دکھایا جائے۔ اور آج جب ووٹنگ کی بات آئی، آج جب الیکشن کی بات آئی، آج جب مینڈیٹ کی بات آئی، آج جب کرسی پر بیٹھنے کی بات آئی، تو منڈی کی عوام جو ہے ان کو یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کووڈ رہا، یہاں پر 370 35A کا مسئلہ رہا، یہ لوگ تو اندر بند کمروں میں چھپے ہوئے تھے۔ آج جب ووٹنگ کا ٹائم آیا، لوگوں کے حقوق کا ٹائم آیا، جب لوگوں کو ڈیموکریٹک سیٹ اپ پر جو ہے اپنا وشواس جتانا ہے، تب جھولی لے کے یہ لوگ آ گئے کہ ہمیں اقتدار میں بٹھاؤ۔ سب سے پہلے آج میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہم نے 22 سال اقتدار دیا ہے، آپ کو 22 سال جو کرسی پر بٹھایا ہم نے، سب سے پہلے ان کا حساب دیں ہمیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہم لیں گے۔ بہت بہت شکریہ شکیل صاحب، ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔
हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो आपने इस वक्त हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात रखें। तो आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन की मुहिम चल रही है और बड़ी ज़ोरों शोरों से मुहिम चल रही है। तो आज जो हालात बने हुए हैं आप खुद देख रहे हैं कि आप मंडी ब्लॉक में देख लीजिए, आप लोरन ब्लॉक में देख लीजिए, आप साथरा ब्लॉक में देख लीजिए, आप पुंछ सिटी के अंदर नौजवानों का रुझान देख लीजिए, आप कन्हैया ब्लॉक में देख लीजिए, आप नगाली ब्लॉक में देख लीजिए। लोगों ने, ये जिन लोगों को इससे पहले इक़्तिदार दिया, जैसा कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, मरहूम जान साहब 12 साल इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रहे। उसके बाद उनके साहबजादे मैं शहजादे बोलूँगा, वो शहजादा जो शहजादा टूरिस्ट वीज़े पे आता है, 1.5 महीने के लिए यहाँ लोगों के आगे जोलियाँ फैलाते हैं, और इतनी शर्मिंदगी की बात है कि घर की औरतों को निकालते हैं वोट मांगने के लिए। तो वो 10 दिन जो उनके लिए होते हैं, उन 10 दिनों में वो लोगों के पैर भी चाटते हैं, लोगों को बाबा दादा अम्मा सब रिश्तेदारियां निकालते हैं, लेकिन फिर 4 साल 365 दिन वो लोगों को नहीं मिलते। वो शहजादा बिल्कुल ज़मीन पे उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। 21 साल उनके पास इक़्तिदार रहा सरफराज साहब। आप खुद देखिए कि 21 साल के इक़्तिदार, 2020 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी वालदा मोहतरमा यहाँ से डीडीसी का इलेक्शन मंडी ब्लॉक से जीती। आप उनसे पूछिए, 4.25 करोड़ रुपया उनका फंड आया। आप उनसे पूछिए कि मंडी ब्लॉक की 17 पंचायतों में कौन सा एक ऐसा काम, तारीखी काम, इज्तिमाई काम जो तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए है, वो बता दें, नहीं बता पाएंगे। देखिए, जान साहब ने अढ़ाई में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि पीडीपी जो है बीजेपी की जमात है, और बीजेपी को जो है पीडीपी ने यहाँ पे जो है लाया है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शहजादा, मेरे ख्याल, मुझे लगता है वो शहजादा ही रहा, स्कूल में कहीं नहीं गया। ये बात अगर कोई अनपढ़ आदमी बोलेगा तो मैं मानूंगा इसको इल्म नहीं है। तो पढ़ा लिखा आदमी, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए कहलाने वाला आदमी, वो ये बात कह रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी को लाया। आप बखूबी जानते हैं कि 2014 में कश्मीर वैली, कश्मीर प्रोविंस के लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एतमाद दिया, और जम्मू प्रोविंस की आवाम ने बीजेपी को एतमाद दिया। तो आप ये बात कह के जम्मू प्रोविंस के जितने भी लोग हैं जिन्होंने 25 सीटें बीजेपी को दी, उनको वोट दिया, आप उनको गाली दे रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। तो उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो अलायंस किया बीजेपी के साथ, वो एक एजेंडे के तहत हुआ, और उस एजेंडे में सरे फरिश्त 370-35A को ना तोड़ने की बात कही गई। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम था, 1.5 अरब आबादी के मुल्क का वजीर आजम, उसने उस एजेंडा ऑफ अलायंस पे दस्तखत किए थे। और फिर मैं आपको बताऊं, जब 2018 में एक सानिया हो गया, सानिया था रसाना वाला, एक मासूम बच्ची पे जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ, उस पे जुल्म हुआ, तो उस जुल्म के खिलाफ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कुर्सी को लात मार दी। तो आप दविंदर राणा साहब की बातें सुनिए, 4 दिन पहले की उनकी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वायरल हुई है कि 2016 से लेकर 2021 तक तलवे चाट रहे हैं बीजेपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जिसमें वो कहते हैं मैं बहैसियत नायब सदर, मैं बहैसियत जम्मू प्रोविंस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस उस कमेटी का मेंबर रहा जिस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बीजेपी के साथ बात करके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस करवाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पहले आपने सदर से पूछना चाहिए, इन लोगों की क्या बात करते हो। उमर अब्दुल्ला साहब जब वो इलेक्शन हारे कहाँ, बारामूला सीट से, तो उन्होंने कहा जिन 5 लाख लोगों ने इंजीनियर रशीद को वोट दिया वो 5 लाख के 5 लाख मिलिटेंट से। तो ये लोग क्या कौम की वो नुमाइंदगी करेंगे? ये लोग कौम की नुमाइंदगी करने के लायक नहीं है सरफराज साहब, ये खाली डंगूसला है। मैं आपको बताऊंगा जब 8 तारीख को काउंटिंग होगी, आप उस अढ़ाई गांव का, आप मंडी का, आप अजमाबाद का, आप राजपुरा का, आप अतोली का, आप छेला डांगरी का, आप लोरन का, आप वहां रिजल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में मियां साहब की लहर होने के बावजूद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंडी ब्रिज तक 10,400 वोट लिया था, और
इस इलेक्शन में आप याद रखना, हम मंडी ब्रिज तक 15,000 वोट ले रहे हैं, और जब हम डिंगला पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह 18 से 20,000 वोट लेते हुए जाएंगे। और जो रह गया, आप कह रहे हैं एजाज जान साहब, एजाज जान साहब को अपने घर में 4 लोग मीटिंग के लिए नहीं मिले। आप परसों की देखिए, 18 गाड़ियां एजाज जान साहब ने साथ रखी हुई हैं, और उन 18 गाड़ियों के अंदर भरे हुए हैं वो लोग जो लोग हमेशा इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वोट आवाम देती है, गरीबों के हकूक लूटने वाले वो लोग हैं जो 18 गाड़ियों में भर के इसके साथ जाते हैं और लोगों को बताते हैं। ये कुछ भी नहीं है, एजाज जान साहब की कोई फील्ड नहीं है। और बाकी रहे दूसरे, हमारे एक मोहतरम शाह मोहम्मद तांतरे साहब हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो 2014 में आए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको टिकट दी, उनको इज्जत दी, वो एमएलए बने। 2019 में जमात छोड़ के चले गए। आप खुद जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाह मोहम्मद तांतरे साहब की, कि जिस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुए थे, बहैसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी शाह मोहम्मद तांतरे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रजौरी पुंछ की आवाम को मैं कहना चाहता हूं कि अपना एक एक वोट बीजेपी को दें। फिर उसके बाद उनका बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। बीजेपी ने ओपनली कहा कि अपनी पार्टी जो है वो हमारी जमात है, उसको आप वोट करें। तो आपने उनकी हालत देखी, पिछले इलेक्शन में मंडी ब्रिज तक 3,000 वोट उन्होंने लिए। आपने उनकी हालत देखी जब उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा लोरन में, तो उनकी हालत देखी, उनकी क्या कंडीशन हुई। तो लोग आज काम देखते हैं, सरफराज भाई, लोग देखते हैं कौन सा लीडर हमें चाहिए जो 24 घंटे 12 महीने हमें यहाँ मिले। लोगों के छोटे मोटे काम हैं, तहसीलदार के पास काम है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास काम है, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास काम है, लोगों के ज्यादा से ज्यादा डिप्टी कमिश्नर के पास एक काम है। ये लोग टूरिस्ट वीजे पे आते हैं। जब ये एमएलए बनने से पहले इन लोगों के छोटे छोटे कमरे होते हैं, इनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि इनके घर में कोई बड़ा लीडर आके बैठ सके। तो एमएलए बनने के बाद शीशे के मकान कहां से बन जाते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए, करोड़ोंपति कहां से बन जाते हैं। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अनाउंसमेंट की सिर्फ 5 गाड़ियां लगी हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए, अपनी पार्टी के जो लीडर कहते हैं हम गरीबों का कारवां, ये कौन सा गरीबों का कारवां है। अपनी पार्टी के लोग कहते हैं हमारे अकाउंट में 315 रुपए। अगर आपके अकाउंट में 315 रुपए हैं तो आपका एक अढ़ाई के वैलेज में 14 गाड़ियां लगी हुई हैं अनाउंसमेंट के लिए। यार ये पैसा कहां से आ रहा है, आप जरा बताएंगे इतना पैसा कहां से आया। तो ये लोग सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। और मैं पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम को मोदमाना अपील करना चाहता हूं कि ये आजमाए हुए लोग हैं, ये आजमाए हुए लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको हमने खून पसीना एक करके उस स्टेज पे पहुंचाया जिस स्टेज पे हमें उम्मीदें थी कि जिन लोगों से हमने वोट मांगा, जिन लोगों जहां जहां हमने मेहनत करके इनको वोट दिलाए, उन लोगों के काम होंगे। इन्होंने बजाय उन लोगों के काम करने के, उन लोगों के काम किए जो आज इनको ये गाड़ियां दे रहे हैं, जो आज इनको लाखों रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए दे रहे हैं। ये उन लोगों की पैरवियां करते हैं, मखसूस लोगों की, जब ये कुर्सी पे बैठते हैं, जिन लोगों का कहीं आवाम से कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं आवाम से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा कि आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि हम मुगल रोड खोलेंगे। आपको पता है 2003 से 2005 का छोटा सा पीरियड मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को बैसियत चीफ मिनिस्टर मिला। उन्होंने कहा हम मुगल रोड खोलेंगे। ख्वाब देखा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुगल रोड खुलवाई, मुगल रोड खोली मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा मैं मंडी को तहसील का दर्जा दूंगा, मंडी में तहसील बनी। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा खिता पीर पंजाल की आवाम को हम एक यूनिवर्सिटी देंगे, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आपके सामने है। उसके बाद जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी, महबूबा मुफ्ती साहिबा जब चीफ मिनिस्टर बनी तो ये अल्ताफ बुखारी साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वजीर तालीम थे, जिनकी आज बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं अपनी पार्टी के लोग। मैं दावे से कहता हूं 25 कॉलेजें 28 कॉलेजें जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुई थी। 25 कॉलेजें जो है वो अल्ताफ बुखारी साहब ने देनी थी और 3 कॉलेजें जो है वो मोहतरमा महबूबा जी ने अपने डिसीजन पे रखी थी। और जब 25 कॉलेजों की लिस्ट आई तो मंडी का नाम नहीं था, आप रिकॉर्ड ढूंढिए। फिर उसके बाद हमारे लीडर शमीम अहमद गनई साहब ने जब मोहतरमा जी को फ़ोन किया कि मंडी का डिग्री कॉलेज कहाँ है, तो मोहतरमा जी आई और मोहतरमा जी ने मंडी की आवाम को वो कॉलेज गिफ्ट की। आपको मालूम है जब यहाँ से बाजार में जाम लगता था, लोगों को कितनी परेशानियाँ कितनी तंगियाँ होती थी। जब मुफ्ती
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 2015 में 14 में चीफ मिनिस्टर बने, शमीम भाई ने मुफ्ती साहब से गुजारिश की कि हमें एक ब्रिज की यहाँ सख्त ज़रूरत है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये बाईपास ब्रिज जो है ये मंजूर करवाया। आज ये बताएं, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार में रह के, महबूबा मुफ्ती की सरकार में रह के जो इन्होंने काम किए वो अपने खाते में नहीं गिन सकते। ये खुद बताएं कि इन्होंने क्या काम किए। 2018 में जब असेंबली डिसॉल्व हो गई, असेंबली डिसॉल्व होने के बाद आप एमएलए थे, आप साबित कीजिए 2018 से लेकर 2024 तक यहाँ लोगों में कोविड की बीमारी आई, लोगों ने परेशानियां देखी, 370-35 से टूटा, कर्फ्यू लगा, लोगों ने परेशानियां देखी। आप बताइए, ओपन आके आइए, आइए मैदान में, मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप बताइए आप लोगों की के दुख सुख में कब शरीक हुए? नहीं हुए, आज आए हो आप। इन लोगों की ग्रास रूट पे कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। अब ये अपना रोना रो रहे हैं सिर्फ गाड़ियों के अंदर, आप ये रोना रो रहे हैं सिर्फ उन लोगों के, आपने देखा होगा इनकी गाड़ियों से पैसा मिल रहा है, इनकी गाड़ियां जब्त हो रही हैं, इनकी हालत बिगड़ी हुई है, लोग इनसे बात करके राजी नहीं है। मैं आवाम से, नौजवानों से अपील करूंगा, शमीम गनई जो है वो आवाम का लीडर है, गरीब परवर है, और शमीम गनई की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, वो लीडर है, ना देखता है कि ये आने वाला सिख है, ना देखता है आने वाला हिंदू है, ना देखता है मेरे पास आने वाला साहिल गुज्जर है, ना देखता है आने वाला साहिल कश्मीरी है, किस कम्युनिटी से है, किस जमात से है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके पास जो साहिल आता है वो उस साहिल के लिए खड़ा रहता है। मैं आवाम से अपील करूंगा कि इन लोगों को आपने आजमा लिया है, आप आने वाले 5 साल शमीम गनई को आजमाइए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या होती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर देखिए, उसमें जो हमने कहा कि हम ने जो SRO 520 जो महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में बना था, जिस SRO के तहत 66,000 डेली विजिट को परमानेंट करना था, जिस SRO के तहत लैंड डोनर, जिन लोगों ने स्कूल बिल्डिंग्स के लिए, वाटर टैंक्स के लिए ज़मीनें डोनेट की हैं, उन लोगों को नौकरी देनी थी। वो SRO बनने के बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई, वो SRO वहीं रह गया। हमारी हुकूमत बनती है इंशाअल्लाह अज़ीज़, सर फरिश्त पहले ही साल में 66,000 डेली विजिट्स को परमानेंट किया जाएगा SRO 520 के तहत, और जितने भी लैंड डोनर हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। हमारी हुकूमत आती है, हमें अवाम ताकत देती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो लोग इस वक्त हैंडीकैप्ड और बेवा औरतें, 2,000 रुपया जो मैडम ने बैसियत चीफ मिनिस्टर 300 से 1,000 रुपया उनकी पेंशन की थी, उनकी पेंशन 1,000 से 2,000 की जाएगी। हमारी हुकूमत आती है, मोहतरमा जी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मोहतरमा जी की हुकूमत आती है और अवाम PDP को ताकत देती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो स्टोर्स पे, डिपो पे जो पहले लोगों को कैरोसिन ऑयल और जो शुगर मिलती थी 2 kg पर फैमिली, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा शुरू की जाएगी, वो बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो 35 kg राशन पर राशन कार्ड होल्डर मिलता था, वो अब 5 kg पर कस कर दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जब मोहतरमा जी पावर में आएंगी, इख्तियार में आएंगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम के तहत दोबारा पर राशन कार्ड 35 kg किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, थैंक यू। मज़ीद अपडेट के लिए आप देख रही है पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त, सरफराज मलिक को, अल्लाह हाफ़िज़।